Today we will see that the application of first law of thermodynamics. आज हम देखेंगे उष्मागतिकी के प्रथम नियम का एप्लीकेशन पार्ट। इसके प्रीवियस सेशन में हम बता चुके थे कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या होता है। फिर भी हम इसको देख सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी हैव सीन दैट W equals to Q. W equals to Q means any form of the energy is completely converted to the heat energy. So this is called the first law of thermodynamics. And all this part applicate part of the first law of thermodynamics. हमने different process पढ़ी है इस law के अंतर्गत thermodynamics में कि हम किन किन process में इसको हम use कर सकते हैं। तो cyclic process, isothermal process, isobaric, isobaric, adiabatic, expansion and compression. इन सब process में हम देखेंगे कि ये first law किस तरीके से applicant होता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट प्रोसेस इज इन अ साइक्लिक प्रोसेस। अब इन अ साइक्लिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमें एप्लीकेट करना है, इसको यहाँ पर यूज करना है। तो इसको किस तरीके से यूज करेंगे? ओके, तो इन अ साइक्लिक प्रोसेस so we can see already that from the first law of thermodynamics we know that dq equals to du plus dw. This is a mathematical formula of first law of thermodynamics. So dq equals to du plus dw, and a cyclic process, which terms or which quantity mostly affected in a cyclic process. So we can firstly say that which terms affected. So in a cyclic process, what is the definition of cyclic process? In a cyclic process, the system returns back to its initial position, and after back to its return position, passing through the different intermediate states. So in these conditions, internal energy will be zero. Why? Internal energy why will be zero? Because internal energy depending on both points A and B. A is initial state and B is on expansion. This is a changing in state. ये state को changing अवस्था में बताता है. Not depends on a following path. So this is also called the internal energy is function of the path of function. Okay? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके वापस अपने स्टेट में वापस आ रही है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि du इक्वल्स टू जीरो। तो थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ में जो सबसे इफेक्टिव टर्म्स है वो क्या है? du। तो du इक्वल्स टू जीरो। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स लॉ इन अ साइक्लिक प्रोसेस, सो dq इक्वल्स टू dw। ओके, तो ये du क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्लैंक, दिस इज जीरो। सो दिस इज यहाँ पर ये फर्स्ट लॉ जो हो जाएगा dq इक्वल्स टू dw। अब dq क्या है? व्हाट इज द dq? dq इज एब्सॉर्ब्ड हीट और रिजेक्टेड हीट। तो एब्सॉर्ब्ड हीट बाय द सिस्टम इज इक्वल्स टू टोटल डन वर्क बाय द सिस्टम, एंड रिजेक्टेड हीट ऑन द सिस्टम इज इक्वल्स टू डन वर्क on the system. अब हम बार बार यहाँ by the, on the, heat rejected and absorbed heat की बात कर रहे हैं। तो we have already seen in a previous session, this is a expansion, this is a compression. तो in a expansion process, तो heat absorbed by the system, and in a compression process, heat rejected by the system. Okay, so we can clearly say that heat rejected or a absorbed is total equals to done work by the system or on the system. Okay, and second thing, अब हम second process देखेंगे। first is a cyclic process and second is an isothermal process. तो according to the definition isothermal, in this process temperature remain constant. ये भी हम देख चुके हैं कि आइसोथर्मल मीन्स क्या होता है? किसी भी सिस्टम का तापमान नियत होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। फिर वही चीज, इसको हमें कहाँ एप्लीकेट, किसको एप्लीकेट करना है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इन सब प्रोसेस में हम जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे? वी विल बी यूज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो वी कैन सी दैट dq इक्वल्स टू du प्लस dw। सेम चीज जो हमने यहाँ कहा था कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, सबसे पहले उस टर्म्स को देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग इस प्रोसेस में हम उसका रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो dq इक्वल्स टू du प्लस dw। तो
gas depending on totally temperature. ओके, ये किसी भी परफेक्ट गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है उसके टेम्परेचर पर फुल डिपेंड करती है, फुल्ली उस पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। तो जब आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर किसी सिस्टम का सेम है, इसका मतलब उसमें जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। Why? Because internal energy depends on the temperature. So we can say that du equals to 0. And since internal energy of a perfect gas depends on the temperature, so we can write du equals to 0. And after applying the first law of thermodynamics, dq equals to dw. So we also can write dq equals to dw. अब इस कंडीशन में फिर वही चीज, रिजेक्टेड हीट, एब्जॉर्ब्ड हीट। तो अब यहाँ पे टू टर्म्स को भी हम यूज करके वही सेम थिंग को हम इसको थोड़ा सा अपने फिजिक्स के डेफिनेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन वही चीज है। तो आइसोथर्मल में हीट एब्जॉर्ब, यही चीज आ गई, एब्जॉर्ब हीट, एक्सपेंशन हीट एब्जॉर्ब बाय अ गैस इज इक्वल्स टू टोटल डन वर्क by which, यानी by gas. Okay, and same thing is isothermal compression. Isothermal compression. So heat rejected by the gas is equals to done work. Done work on it. Done work on a gas. वही चीज है, expansion और absorbed heat by the gas by the system. Rejected heat on the system. Rejected heat जो होगा वो on the system means in a compression process. Okay. एंड अब बात हो रही है आइसोथर्मल की, तो we in other word we can also say that in a system temperature is constant, so these obey the Boyle's law. So according to the Boyle's law, PV equals to constant, PV product of pressure and volume equals to constant according to the Boyle's law. Boyle जो साइंटिस्ट थे उनके नियम से हम ये कह सकते हैं। और अब हम मैथमेटिकली, अब हम जो कि इसकी प्रीवियस सेशन में हम पीवी डायग्राम भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज द पीवी डायग्राम, द ग्राफ प्लॉटेड, द कर्व ऑन दिस ग्राफ ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द पीवी डायग्राम। और इन अदर इजी वे में हम ये भी कह सकते हैं कि द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड द पीवी डायग्राम। अब हमें किसी भी पीवी डायग्राम को शो करने के लिए इसका प्रोसेस में हम मैथमेटिकली यदि इसको एक्सप्लेन करें तो हम किसी कर्व, किसी स्लोप को बता सकते हैं कि इस प्रोसेस में इसका स्लोप क्या होगा, एडियाबैटिक स्लोप, आइसोथर्मल स्लोप। तो हम इसको मैथमेटिकली स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए, तो वी कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द आइसोथर्मल कर्व। सो दिस प्रोसेस, तो अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यदि हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, आंशिक अवकलन, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसका यदि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या होगा, सिंपल लॉज ऑफ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। ओके, सो पी dv प्लस सेकंड टर्म इज कांस्टेंट v dt इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब इसको इस इक्वेशन से हम यहाँ इजी वे में निकाल सकते हैं, dp by dv इक्वल्स टू माइनस p अपॉन v। तो दिस इज, व्हाट इज दिस, दिस इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। तो हम वी कैन आल्सो से ऑन अ पीवी डायग्राम द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व इक्वल्स टू माइनस p अपॉन v। ओके, तो ये तो हुआ मैथमेटिकली कि हम उसको स्लोप, किसी भी प्रोसेस के स्लोप को किस तरीके से बता सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज अ साइक्लिक प्रोसेस, सेकंड थिंग इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड थिंग इज इन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो वी कैन आल्सो से द इन एडियाबैटिक, इसको हिंदी में हम कहते हैं रुद्धोष्म विधि, रुद्धोष्म यानी नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट। तो इफ अ सिस्टम नाइदर एब्जॉर्ब हीट एंड नॉर इट्स रिजेक्ट हीट, ना ये हीट को एब्जॉर्ब करता है ना रिजेक्ट करता है, नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एडियाबैटिक। ओके, अब जब हम कह रहे हैं कि नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट, सो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि dq इक्वल्स टू 0, उसमें हीट है ही नहीं, उसमें तो हम क्या कह सकते हैं, dq इक्वल्स टू 0। ओके, तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ dq इक्वल्स टू du प्लस pdv, तो जब dq इक्वल्स टू 0 है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं,
पर कह सकते हैं dW इक्वल्स टू माइनस वी, तो dW इक्वल्स टू PdV अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क। या हम PdV लिख सकते हैं या dW लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, du इक्वल्स टू माइनस PdV, या यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं dW इक्वल्स टू माइनस du। क्योंकि अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एडियाबैटिक की। तो एडियाबैटिक जो है जस्ट अपोजिट ना आइसोथर्मल, तो हम कहते हैं एक्सपेंशन दिस इज अ पॉजिटिव एंड कंप्रेशन दिस इज अ नेगेटिव। बट इन द केस ऑफ एडियाबैटिक तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, dW इक्वल्स टू माइनस du, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि टोटल डन वर्क इज इक्वल टू इंक्रीज, माइनस du है तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन। अपोजिट होगा ये, कंप्रेशन में हम क्या कहते हैं कि नेगेटिव थिंग होती है, रिजेक्टेड हीट होती है, और हम यहाँ कहते हैं एब्जॉर्ब्ड हीट, दिस इज एक्सपेंशन। बट इन केस ऑफ एडियाबैटिक दिस अपोजिट, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन है तो दिस इज डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द गैस। ओके, एंड एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में हम क्या कहेंगे, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द गैस। ओके, मतलब सेकंड इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन मींस क्या होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द गैस, डिक्रीज एंड इंक्रीज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू डन वर्क बाय द गैस ऑन द गैस। बस रिमेंबर दैट the just opposite isothermal process are expansion, this is not a positive, increase in a compression and decrease in a expansion, why, because these processes are adiabatic। okay, so अब ये तो हमने देखा कि dW का, लेकिन ये किस तरीके से इसको हम यदि एग्जांपल के तौर पर देखें तो हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो if a system in adiabatic expansion, so temperature in this condition temperature will be decrease। okay, तो for example tea in a thermoflask and stirred rapidly, यदि हमने टी को किसी थर्मोफ्लास्क में लिया है और हम उसको रैपिडली स्टिर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। व्हाई, बिकॉज नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन अ थर्मोफ्लास्क फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ओके, ये सराउंडिंग से किसी भी प्रकार का इसका हीट ट्रांसमिशन नहीं हो रहा। तो वर्क कौन कहाँ हो रहा है, द वर्क्स ऑन अ टी, हम किस पे काम कर रहे हैं, टी पे, क्योंकि हम टी को क्या कर रहे हैं, रैपिडली स्टिर्ड कर रहे हैं। तो वर्क्स ऑन अ टी just against the viscous force between different layers, okay, due to the its internal energy। so hence we can also say in this process the temperature will be increases। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि in a adiabatic compression so temperature will be increases। okay, and just other example adiabatic expansion। तो adiabatic expansion means if a system in adiabatic expansion so temperature will be temperature expansion, तो temperature जो होगा will be क्या होगा, decreases। तो for example हम देख सकते हैं कि if a tire of vehicle suddenly a burst, कोई भी टायर है यदि अचानक से सडनली क्या होता है, फट जाता है, तो क्या होता है, फट जाने पे क्या होता है, जस्ट एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली। तो उसकी जो एयर होती है वो क्या होती है, एडियाबैटिकली। क्यों, बाय, बिकॉज नो कम्युनिकेशन हीट फ्रॉम सराउंडिंग, सो रैपिडली एक्सपेंड एयर रैपिडली एक्सपेंड, मतलब उसमें जो एयर होती है वो जल्दी से क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, तो उसमें हीट ट्रांसमिशन होने का इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जस्ट दिस इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जस्ट कूलिंग प्रोसेस प्रोड्यूस। ओके, सो टेम्परेचर विल बी फॉल, मतलब टेम्परेचर जो होता है वो जल्दी से क्या होता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इन दिस कंडीशन टेम्परेचर विल बी डिक्रीज एंड इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। ओके, एंड आफ्टर दिस अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एडियाबैटिक इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस, इसका जो एडियाबैटिक इक्वेशन होगा किसी आदर्श गैस के लिए वो किस तरीके से हम डिराइव करेंगे, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो जस्ट हम यहाँ पर बार बार ये चीज़ को रिपीट करते हैं, dV dW मीन्स चेंज इन अ वर्क एंड चेंज इन अ वॉल्यूम। तो इस फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं इनफिनिटेसिमल अमाउंट, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। So change in a volume from P1 to P2 and constant pressure is the P. So according to the definition of work, dW equals to PD. Okay? And अब यहाँ पर जो
एनर्जीज होगी, इंटरनल एनर्जी यहाँ पर कौन सी है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इंटरनल एनर्जी यानी क्या होगा, अपोजिट होगा एक्सपेंशन। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मींस हम कौन सा फंक्शन देख रहे हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होगा। व्हाई, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। यदि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर फॉल होगा, और यदि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर विल बी आल्सो इंक्रीज। तो हमने यहाँ पर यदि इक्वेशंस को लिखते हैं तो ये जो dt है, व्हाट इज द dt, दिस इज अ फॉलिंग टेम्परेचर, गिरता हुआ जो टेम्परेचर उसमें जो चेंजेस हो रहा है। तो दिस इज अ फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला du इक्वल्स टू cv dt। अब cv, व्हाट इज द cv, दिस इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसी नियत आयतन पर इसकी जो स्पेसिफिक उष्मा होती है, विशिष्ट उष्मा, उसको हम बोलते हैं cv। ओके, तो दिस फॉर्मूला इज du इक्वल्स टू cv dt, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, cv dt। अब हमें यहाँ पर क्या एप्लीकेट करना है, थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो वी कैन राइट dq इक्वल्स टू du प्लस pdv। अब हमने यहाँ पर देखा कि dq इक्वल्स टू du प्लस pdv एंड फंक्शन इक्वेशन क्या है, एडियाबैटिक इक्वेशन। तो एडियाबैटिक मीन्स नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट, नो ट्रांसमिशन ऑफ हीट मीन्स हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dq की वैल्यू क्या होगी, 0। अब एडियाबैटिक है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा dq इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू du प्लस pdv। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du, cv dt। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ du cv dt इन प्लेस ऑफ du। ओके, cv dt प्लस pdv, ठीक है, एंड सिंस dq इक्वल्स टू 0। अब cv dt प्लस pdv, इसको हमने इक्वेशन दे दिया। अब परफेक्ट गैस के लिए वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू RT। ये सभी 11th-12th से मे भी सभी लोग जानते हैं, 9th-10th में ये इक्वेशंस आ जाती है, आइडियल गैस इक्वेशन। सो दिस इज PV इक्वल्स टू RT। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो बाय द पार्शियल डिफरेंशिएशन PdV प्लस VdP इक्वल्स टू RdT। R का हम नहीं करेंगे, क्यों, वाई, बिकॉज R इज अ कांस्टेंट। ओके, सो T differentiation, after differentiation RdT। So this is partial differentiation and we know that already from Mayer's relation, Mayer साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक रिलेशन दिया था Cp और Cv के बीच में। So this relation is Cp minus Cv equals to R। Cp is a specific heat at constant pressure, a specific heat at constant volume, and this subtraction is equals to R कांस्टेंट। ओके, तो Cp माइनस Cv बराबर R। अब ये जो वैल्यू है हम इसको इस इक्वेशन से देख सकते हैं, 8th इक्वेशन, फ्रॉम 8th इक्वेशन। सो दिस इज Cv dt प्लस pdv, Cv dt प्लस pdv। अब हम यहाँ पर ये जो वैल्यू है, यहाँ से हम dt की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर dt इक्वल्स टू क्या दे रहे थे, हम निकालेंगे तो Cv dt इक्वल्स टू यहाँ पर pdv प्लस vdp, Cv dt प्लस pdv इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम इक्वेशन हम यहाँ पर देखेंगे इस इक्वेशन से। ओके, तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, pdv प्लस vdp अपॉन r। फ्रॉम इक्वेशन 8 pdv प्लस vdp अपॉन dt या अपॉन r इक्वल्स टू dt। ये हमें यहाँ पे dt की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अपॉन r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ r Cp माइनस Cv, जस्ट Cp माइनस Cv। तो इस R की जगह पर हम Cp माइनस Cv लिख सकते हैं। ओके, एंड अब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dt, अब इस dt की वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन इक्वेशन 7, Cv dt प्लस pdv। ये dt, इस dt की जगह पर इस dt की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, so after substituting the value in equation 7, so this is Cv 7, this is Cv dt की जगह हम किस वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, दिस थिंग इज dt की जगह हम इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, सो pdv प्लस vdp अपॉन Cp माइनस Cv प्लस pdv
इक्वल्स टू 0. ओके, अब आफ्टर एलसीएम सॉल्विंग दिस इक्वेशन, so this is CV PdV plus CV VdP plus CP PdV minus CV PdP. एलसीएम सबको आता है, तो इसको हम आफ्टर एलसीएम जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस प्रोसेस दिस टर्म्स ऑब्टेन द CV VdP plus CP VdP इक्वल्स टू 0. ओके, अब हम सॉल्व करने के लिए ऐसे कौन सी टर्म्स लेके हमें सॉल्व करने पे एक डिसाइडेड एक हमें टर्म्स मिल जाए, तो आई थिंक डिवाइडिंग बोथ साइड बाय CV इनटू PV. अब हम क्या करेंगे, CV और PV को दोनों साइड में क्या करेंगे, बोथ साइड में डिवाइड करने पर, इस टर्म्स में जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आफ्टर डिवाइडिंग these terms find out dp by p plus cp upon cv dv upon v equals to 0. So we know that cp upon cv, what is the cp upon cv? We know that already in a adiabatic process, okay, and Poisson's law, ये किसको फॉलो करता था, Poisson's law को. तो according to the Poisson's law, pv to the power gamma equals to constant in this process. So what is the gamma? Gamma is equal to the ratio of cp upon CV, Cp upon Cv. So we can say in place of Cp upon Cv, the terms is gamma. So dP by P plus gamma dV by V equals to 0. So अब हम clearly यहाँ पर हम देख सकते हैं, we can clearly say that dP by P after integration dP by P log P plus dV upon V log V. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, we can write after integration this terms log p plus gamma log v equals to 0. तो 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट का लॉगरिथम ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, log k इज अ कांस्टेंट. ठीक है, 0 की जगह हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट log k. तो इस सारे को हमने लॉगरिथम के रूप में लिखने के लिए लिखा है log p plus gamma log p plus log k equals to log k. ओके, solving the equation dp upon p plus gamma dp upon v equals to 0. So what is the gamma? In adiabatic process, gamma equals to Cp upon Cv. The specific heat at constant pressure by specific heat at constant volume. So this is equals to gamma. And on integrating this equation, so dp by p, this integration is log p, logarithm of p. According to the formula of integration, okay, and dv by v, so this is log v, gamma as it is, so log p plus gamma log v 0, so 0 we can write in this place constant. Okay, so log p plus gamma log v equals to constant. अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, we can also write according to the formula of logarithm log a plus log b. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, log a into b. ओके, सो log p plus gamma log a b, so log e p into v to the power gamma. gamma log a b, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, we can write p into v and v to the power gamma according to the definition of logarithm equals to constant है, तो constant को हम क्या लिख सकते हैं, we can write log e k. Why? Because this value also 0, also constant, so we can write log e k. K is a constant. तो log these are cancelled, so p v to the power gamma equals to k. So p v to the power gamma equals to k. We also read about this in adiabatic process by the scientist of Poisson. So this equation is called the Poisson's equation, okay, of a adiabatic process. तो जो रुडोल्फ में विधि होती है वहाँ पर किन साइंटिस्ट ने बताया था ये सब, पॉइसन जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के द्वारा ये इक्वेशन लिखा गया जिसको pv to the power gamma equals to k, इसको हम कहते हैं Poisson's equation. Okay, no transmission of heat in this case, this equation. अब फ्रॉम रिलेशन अब हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है प्रोसेस में. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ adiabatic कर्व? सो फॉर फाइंड आउट द कर्व, सो दिस प्रोसेस, अब pv टू द पावर गामा इक्वल्स टू k, तो हम इसको क्या है अदर फॉर्म को यदि हम लिखना चाहें pv इक्वल्स टू rt से, तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, p इक्वल्स टू rt अपॉन v एंड v इक्वल्स टू rt अपॉन p. तो इम्प्लीमेंट आफ्टर बोथ
Poisson equation in a different forms, we can write T v to the power gamma minus 1 equals to constant and Tp 1 minus gamma upon gamma equals to constant. ये कैसे आया? ये आया हमारा इस इक्वेशन से P equals to, तो ये PV आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ PV to the power gamma equals to K. So this equation we can write in other forms of a Poisson equation. Okay. एंड अब हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हम फिर से वापस से अपने इसी इक्वेशन में जाएंगे, पॉइसन इक्वेशन में. सो पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. हम फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ऑन द पार्शियल डिफरेंशिएशन, सो वी नो दैट द फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, सेकंड टर्म इज अ डिफरेंशिएशन, सेकंड इज अ कांस्टेंट, फर्स्ट द डिफरेंशिएशन. सो p फर्स्ट इज अ डिफरेंशिएशन, तो सेकंड इज कांस्टेंट, तो dp v टू द पावर गामा प्लस, अब यहाँ पे हमने p को डिफरेंशिएट करे थे, तो अब हम p कांस्टेंट करेंगे. p कांस्टेंट करेंगे तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ v टू द पावर गामा? गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 dv इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो दिस इज 0. अब हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व ऑफ पीवी डायग्राम. स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे. तो dp v टू द पावर गामा इक्वल्स टू, दिस इज 0, सो दिस इज राइट साइड. ओके, तो माइनस पी टू दी पावर गामा माइनस 1 dv. हमें dp अपॉन dv की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा? dp अपॉन dv, इस dv को हम कहाँ यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे. ओके, तो dp अपॉन dv इक्वल्स टू यहाँ होगा माइनस गामा p v टू दी पावर गामा. अब हमने ये कैसे लिखा? v टू दी पावर गामा माइनस 1 है, तो वी कैन राइट दिस फॉर्म v टू दी पावर गामा अपॉन v, गामा अपॉन v, एंड दिस इज v टू दी पावर गामा. इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपॉन v. v टू दी पावर गामा को शिफ्ट करेंगे यहाँ, तो v टू दी पावर गामा और v टू दी पावर गामा माइनस 1 को इस तरीके से हम लिखेंगे. तो फाइंड आउट dp अपॉन dv इक्वल्स टू माइनस गामा p अपॉन v. ये चीज आ गई माइनस गामा p अपॉन v. So this is the slope. Slope of adiabatic curve on PV diagram is minus gamma p upon v. Okay. अब नेक्स्ट है हमारा आइसोपोरिक प्रोसेस. तो वी नो दैट आइसोपोरिक जिसको हिंदी में हम कहते हैं समआयतनिक. अब हिंदी में जैसा समआयतनिक नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसका आयतन समान होता है, मीन्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स dv इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इक्वल्स टू du प्लस pdv. अब dv इक्वल्स टू 0 मीन्स dv इक्वल्स टू 0, सो दिस टर्म्स इज ये 0, this is done, so dq equals to du. अब dv equals to 0, तो totally work depending on the volume. Volume is 0, so this equation is dq equals to du. अब dq क्या है? ये absorbed heat. Heat absorbed heat, so this is equals to, अब यदि absorbed heat है यानी energy क्या होगी? Increase. Absorbed heat means this is positive, so increase energy. Okay, so we can say that absorbed heat equals to increase in internal energy. Okay. And next term is isobaric process. Isobaric means समदाबीय विधि. समदाबीय विधि means दाब समान होता है. Pressure remains constant. अब pressure remains constant means अब हम यहाँ पर क्या है कि हम ये लिखते हैं dq equals to du plus dw. इस तरीके की भी टर्म्स लिखते हैं dq equals to from the first law of thermodynamics. तो अब जब हमने कहा कि pressure is constant, तो इस टर्म्स को जीरो नहीं कर सकते. Not a whole terms write a 0. Why? Because dv. तो dv क्या है? In this process volume changes from v1 to v2. v1 initial volume, v2 is final volume. So जब totally done work depending on the volume. So not a whole terms is 0 at a constant pressure p. तो यदि प्रेशर p कांस्टेंट है तो हम इस टर्म्स को जीरो नहीं कर सकते. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म. सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ सेम थिंग. ओके, dv मीन्स v2 माइनस v1. व्हाई? बिकॉज चेंज इन अ वॉल्यूम v1 to v2. तो dq इक्वल्स टू du प्लस pdv. ओके, देन in case of isobaric process, so we can write up first law of thermodynamics, same thing. This is a dq equals to du plus dw. No changes at a constant pressure. Okay, and इसको हम एक example से भी समझ सकते हैं. For example, boiling of a water in a boiling steam engine. Okay,
यदि हम किसी स्टीम इंजन के बॉयलर में क्या कर रहे हैं, हम पानी को गर्म कर रहे हैं उसके बॉयलर में, तो उसका जो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, सो द चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, तो पानी कहाँ चेंज, किसमें चेंज हो जाता है, आइस में। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का सबसे अच्छा एग्जांपल हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट न्यू टर्म्स इज अ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। सो लेटेंट हीट मीन्स हिंदी में उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, व्हाट इज द लेटेंट हीट? तो लेटेंट हीट जनरली हम इस टर्म्स को लिखते हैं Q इक्वल्स टू L। L इज अ लेटेंट हीट एंड Q इज अ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, हीट एनर्जी, ओके। तो व्हाट इज द लेटेंट हीट, L, व्हाट इज द L? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q के बराबर है, तो Q क्या है उस चीज को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बाय द per unit mass of the substance in changing state of the changing at a same temperature, at a constant temperature। जब हम किसी नियत ताप पर, जहाँ पर किसी भी सिस्टम में यदि टेम्परेचर समान है और किसी भी पदार्थ के द्वारा परिवर्तित अवस्था में, नॉट अ कांस्टेंट स्टेट, परिवर्तित अवस्था, चेंजिंग स्टेट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। तो इन द चेंजिंग स्टेट, चेंजिंग स्टेट में जब हम किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के द्वारा किसी ऊष्मा को, किसी हीट एनर्जी को जब हम एब्जॉर्ब करते हैं, किस कंडीशन में, जब टेम्परेचर सेम होता है, तो इस तरीके की जो हीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। सो दिस इज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू L। Q क्या है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी, L इज अ लेटेंट हीट, ओके। अब हमने यहाँ पर देखा कि अब हमें यहाँ पर लेटेंट हीट में क्या हो रहा है कि हमें इस रूल्स को फॉलो करना है, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ को। तो वी कैन से दैट du इक्वल्स टू dq माइनस dw। अब एक ही चीज ये आती है कि हमने कहा कि इस कंडीशन में कि टेम्परेचर सेम होता है, लेकिन इसी कंडीशन को जब हम वी कैन से इन अदर वर्ड्स व्हेन अ सब्सटेंस इन अ चेंजिंग स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अभी हमने बात करी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम यदि इसी चीज को हम बात करें कि किसी पदार्थ की अवस्था जब चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है, तो उसकी जो एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी होती है उसको हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट प्रेशर में यदि हम लेते हैं, तो जब एट अ कांस्टेंट प्रेशर में लेते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस। तब क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमने हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया वो एनर्जी कहाँ यूज होगी, दिस एनर्जी इज यूज्ड अप इन अ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ाने में उसका यूज होगा। अब बची हुई रेस्ट ऑफ हीट एनर्जी ऑल्सो यूज्ड इन अ इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर की जो भी पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा है उसको भी बढ़ाने में जो बची हुई ऊर्जा है उसका यूज हम वहां पर करेंगे, ओके। तो रिमेन्स हीट एनर्जी यूज इन इंक्रीज इन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हम क्या कहेंगे कि व्हेन नो चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी, जब किसी गतिज ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज इन अ काइनेटिक एनर्जी, सो these say also in other terms this system are in a same temperature, उसका टेम्परेचर क्या है, समान है। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, तो हम क्या बोल सकते हैं, these are in also same temperature, condition is at same temperature, okay। So from the first law of thermodynamics, dq equals to du plus dw, so we can write du equals to, ठीक है, du equals to dq minus dw। अब dq माइनस dw, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेस हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी में जब चेंजेस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, E2 माइनस U1 एंड dq, q इक्वल्स टू L, तो वी कैन राइट dq इन प्लेस ऑफ L, ओके। सो L माइनस dw इक्वल्स टू pdv एंड dv इक्वल्स टू V2 माइनस V1, dv मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, सो pdv pV2 माइनस V1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं L इक्वल्स टू U2 माइनस U1 प्लस pV2 माइनस V1। So this is a final equation of latent heat, okay। एंड इसका एग्जाम्पल यदि हमें देखना हो तो उस एग्जाम्पल को हम इस दो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम वाटर इनटू 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। यदि हमें किसी स्टीम को, यदि हमें कन्वर्ट करना है 1 ग्राम वाटर को यदि हमें स्टीम में चेंज करना है 1 ग्राम स्टीम में, और किस टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो हम इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम थिंग, यदि 1 ग्राम आइस जो है, यदि हम इस 1 ग्राम वाटर को किसमें
में चेंज करना है 1 ग्राम आइस में, कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस समय हम ये लेटेंट हीट इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली कन्वर्सेशन के लिए हीट इक्वेशन को यूज़ किया जाता है। ओके, सो एप्लीकेट द लेटेंट हीट इन बोथ केसेस। एंड सेकेंड थिंग इज द लास्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, जैसे हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, मीन्स क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स इफ अ सिस्टम नाइदर एब्जॉर्ब हीट एंड नॉर डू इट एनी टाइप ऑफ वर्क, वो किसी भी प्रकार की ना कोई हीट का कम्युनिकेशन करता है, ना ही किसी भी प्रकार का कोई वर्क कर सकता है। इसका मतलब जब हीट कम्युनिकेशन नहीं यानी dq इक्वल्स टू 0, जब कोई प्रकार का वर्क नहीं करता मीन्स dw इक्वल्स टू 0। अब dq dw जब both are 0, both are constant, so we can write from the first law of thermodynamics dq equals to du plus dw, so dw equals to 0 and dq equals to 0, so du equals to 0. du equals to 0 means internal energy is constant, so the internal energy of isolated system always remains constant। हमेशा उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी इन केसेस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो इस प्रकार हमने आज जो देखा, आज के सेशन में, आज की क्लास में हमने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के जो प्रथम नियम है, फर्स्ट नियम है, उसको हम किस तरीके से प्रोसेस में एप्लीकेट कर सकते हैं। आफ्टर दिस हम देखेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या हैं, इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। तो इंजन का बहुत बड़ा पार्ट होता है हीट इंजन, स्टीम इंजन, तो इस तरीके के इंजन की इफिशियंसी किस तरीके से अफेक्ट होती है, उसके क्या अफेक्शंस होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस पार्ट को देखेंगे, डिस्कस करेंगे।